Hello dear student, this one is the fourth lecture of the chapter reproductive health. So in previous lecture we discussed about the sexually transmitted disease, and under the sexually transmitted disease we discussed about the bacterial disease and viral diseases. That means the pathogen which are responsible for sexually transmitted disease are bacteria and virus. Now in this lecture I will continue that topic and I will discuss the STDs like the STDs caused by chlamydia, protozoa and fungal. So chlamydial STDs, protozoan STDs and fungal STDs. Second one is, the second topic I will discuss is the infertility. Infertility in case of both male and female. And the third one is assisted reproductive technologies, which is related to the infertility of male and female, because this technique is useful to overcome the problem related to the infertility. Clear? Now I will start from the STDs caused by chlamydia, protozoa and fungal. So first one is the STDs caused by chlamydia. So there is a disease which is known as chlamydiasis. Name of the disease, what is the name of the disease? Name of the disease is called chlamydiasis. And what is the causative organism of this chlamydiasis disease? The causative organism is called as Chlamydia trachomatis. This one is very important for your exam as a short question or also for your NEET examination. So what is the causative organism of chlamydiasis? The causative organism of chlamydiasis is the Chlamydia trachomatis. Clear? Now how it is spread from one person to another person? It is spread by sexual contact with the infected person. Simple thing is, it is spread from the infected person to their partner or sexual partner. This one is the mode of their transmission. Now the question is, what are the symptoms of this chlamydiasis? The symptoms include, it causes urethritis, epididymitis, then cervicitis, inflammation of fallopian tubules. Clear? So these are the symptoms. What are the symptoms? It causes urethritis, epididymitis, cervicitis, inflammation of fallopian tubules. So these are the symptoms which are generally found in the disease chlamydiasis. Now the diagnosis. Diagnosis means how to detect the disease. Clear? The detection procedure of the disease. तो डिटेक्शन अगर देखो यहाँ पे, डायग्नोसिस मीन्स डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन क्लिनिकल सिम्टम्स. क्लिनिकल सिम्टम मतलब क्या है, क्या क्या लक्षण दिखाई दे रहा है डिजीज के साथ, उसके ऊपर होगा. प्लस ग्राम स्टेनिंग ऑफ द डिस्चार्ज. डिस्चार्ज मतलब जो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा या फिर जो यूरेथ्रल डिस्चार्ज होगा, उसको हम लोग ग्राम स्टेनिंग के थ्रू एग्जामाइन कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिकली. तो जिससे हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं whether the disease is related to the chlamydiasis. And the last one is the treatment. How it can be treated? It can be treated by the antibiotic. So which are the antibiotic recommended for this chlamydiasis disease? These are the tetracycline, erythromycin. These two antibiotics are more effective for the treatment of chlamydiasis. So what are the important point in this chlamydiasis is the, what is the causative organism? Causative organism is the Chlamydia trachomatis. मतलब ये जो डिजीज जो होता है किसकी वजह से हो रहा है? बाय ए क्लेमाइडियल पैथोजन व्हिच इज कॉल्ड एज क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस. नाउ द क्वेश्चन इज, मैं कभी कभी ये टर्म यूज कर लेता हूँ पैथोजन. पैथोजन का मतलब क्या है? डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म इज जनरली नोन एज पैथोजन. समझ में आ रहा है? पैथोजन का मतलब क्या है, या फिर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है, पैथोजन मीन्स डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज पैथोजन. ठीक है? तो these are the this one is the causative organism which is called Chlamydia trachomatis. How it is spread? It is spread through sexual contact with infected person. Then symptoms include cervicitis, epididymitis, urethritis, etc., etc. And the treatment is carried out mainly by the tetracycline and erythromycin. These two antibiotics are effective for the treatment of chlamydiasis. So this one is the disease caused by Chlamydia trachomatis. तो STD caused by chlamydia हम लोगों ने कर लिया. नेक्स्ट वन इज द STD caused by protozoa. ठीक है? प्रोटोजोआ बिलोंग्स टू विच किंगडम? प्रोटोजोआ बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट. तो
देयर इज ए डिजीज विच इज कॉल्ड एज, यहाँ पे अगर देखो व्हाट इज द एसटीडी कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, द नेम ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड एज ट्राइकोमोनियासिस। क्लियर? व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजीज? आई एम अगेन रिपीटिंग, द नेम ऑफ द डिजीज इज द ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है। नाउ व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन सा प्रोटोजोआ जो है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज ट्रैकोमोनियासिस, इट इज कॉज्ड बाय ट्रैकोमोनास वेजिनलिस। ठीक है। व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ट्रैकोमोनास वेजिनलिस। ठीक है। ये कैसे स्प्रेड होता है? इट इज ऑल्सो स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। इट इज ऑल्सो स्प्रेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है। तो ये हो गया ट्रैकोमोनियासिस। सेकेंड वन इज द सिम्टम। व्हाट आर द सिम्टम फाउंड इन द डिजीज ट्रैकोमोनियासिस? तो फर्स्ट सिम्टम अगर देखो मेल एंड फीमेल के केस में मैंने अलग अलग करके दिया है। देखो इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है, इट कॉजेज वेजिनाइटिस विथ फाउल स्मेल, येलो डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजिना एंड बर्निंग सेंसेशन। ठीक है। तो इन फीमेल क्या क्या हो रहा है देखो, कॉजेज वेजिनाइटिस विथ फाउल स्मेल, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा स्मेल होगा। येलो डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजिना, मतलब वेजिना से येलो कलर का कुछ डिस्चार्ज या फिर सीक्रेट होगा। एंड ऑल्सो बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, या फिर वेजिना में एक बर्निंग सेंसेशन जैसा फीलिंग डेवलप होगा। इन केस ऑफ मेल अगर देखो, इन केस ऑफ मेल इट कॉजेज यूरेथ्राइटिस, प्रोस्टेटिस रिजल्टिंग इन पेन एंड बर्निंग सेंसेशन। इनके केस में, मेल के केस में क्या होता है देखो, इट कॉजेज यूरेथ्राइटिस, प्रोस्टेटिस रिजल्टिंग इन पेन एंड बर्निंग सेंसेशन। तो ये हो गया सिम्टम इन केस ऑफ मेल। तो फीमेल के केस में क्या हो रहा है देखो, सिम्टम इज द कॉजेज वेजिनाइटिस विथ फाउल स्मेल, येलो डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना एंड ऑल्सो द बर्निंग सेंसेशन। इन केस ऑफ मेल क्या होता है देखो, इट कॉजेज यूरेथ्राइटिस, प्रोस्टेटिस रिजल्टिंग इन पेन एंड बर्निंग सेंसेशन। तो ये हो गया सिम्टम इन केस ऑफ प्रोटोजोआ। डायग्नोसिस कैसे किया जा रहा है देखो, डायग्नोसिस मेड बाय क्लिनिकल सिम्टम, मतलब पेशेंट का जो लक्षण जो होता है, लक्षण के ऊपर डिपेंड करके डायग्नोस किया जाता है, या फिर बाय द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ठीक है। एंड द ट्रीटमेंट अगर देखो, द ट्रीटमेंट बिकॉज इट इज़ ए प्रोटोजोन डिजीज, द हाईली इफेक्टिव ट्रीटमेंट और द इफेक्टिव means of treatment is generally carried out by metronidazole. ठीक है। metronidazole is the drug which is highly recommended for the disease against this pathogen. So this one is the protozoan disease which cause this one is the disease caused by protozoa. So what is the disease? Name is the, मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, what is the name? Name is the Trichomonas वेजिनलिस। ठीक है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज द, या फिर पैथोजन इज द ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। एंड सिम्टम में क्या क्या आता है, फीमेल के केस में क्या होता है, वेजिनाइटिस विथ फाउल स्मेल, फाउल स्मेल मतलब खराब स्मेल रिलीज हो सकता है। देन द येलो डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजिना एंड बर्निंग सेंसेशन। एंड मेल के केस में क्या होता है देखो, इट कॉजेज यूरेथ्राइटिस, प्रोस्टेटिस रिजल्टिंग इन पेन एंड बर्निंग सेंसेशन। डायग्नोस कैसे किया जाता है, बेस्ड ऑन क्लिनिकल सिम्टम और बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। एंड ट्रीटमेंट के लिए व्हिच वन इज रिकमेंडेड, मेट्रोनिडाजोल इज हाईली रिकमेंडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइकोमोनियासिस। क्लियर? तो ये हो गया प्रोटोजोन पैथोजन व्हिच कॉज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो हम लोगों ने कौन कौन सा किया, अभी क्लेमाइडिया खत्म कर लिया। देन नेक्स्ट वन इज द प्रोटोजोआ। नेक्स्ट अगर जाओ, नेक्स्ट वन इज द एसटीडी कॉज्ड बाय फंजाई। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो, देयर इज ए डिजीज व्हिच इज कॉल्ड एज कैंडिडियासिस। क्लियर? ये जो फंगल डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, द नेम ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड कैंडिडियासिस। एंड व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और पैथोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कैंडिडियासिस? इट इज कॉज्ड बाय कैंडिडा एल्बिकेंस, जनरली नोन एज वेजाइनल ईस्ट। क्लियर? इट इज कॉज्ड बाय Candida albicans which is generally known as vaginal yeast. ठीक है। एंड हाउ इट इज ट्रांसफर, इट इज अगेन ट्रांसफर थ्रो और ट्रांसमिटेड थ्रो और या फिर स्प्रेड थ्रो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर सेक्सुअल मीटिंग या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तब जाके इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू देयर पार्टनर।
क्लियर। तो ये हो गया कैंडिडियासिस डिजीज। तो फिर से मैं रिपीट करूँगा, व्हाट इज द पैथोजन और द causative organism of this disease candidiasis? The causative organism is called Candida albicans, which is generally known as vaginal yeast. सिम्टम में अगर देखो क्या क्या सिम्टम, अगर देखो पेनफुल इन्फ्लोमेशन ऑफ वेजाइना, ठीक है, विथ थिक चीजी डिस्चार्ज, ठीक है। तो पेनफुल इन्फ्लोमेशन ऑफ वेजाइना, तो वेजाइना जो है, वेजाइना में सोइलिंग या फिर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो सकता है विथ थिक चीज़ी डिस्चार्ज, मतलब वेजाइना से चीज़ की तरह एक पर्टिकुलर सिक्रेशन हो सकता है। देन मैन, इन केस ऑफ मेल अगर देखो, मेन में डेवलप पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा। मेल के केस में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग भी बोल सकते हैं हम लोग, स्वेलिंग ऑफ यूरेथ्रा विच इज़ वेरी पेनफुल। तो दीज आर द सिम्टम फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल। तो फिर से मैं सिम्टम को रिपीट करूँगा। फीमेल के केस में क्या होता है, पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजाइना, मतलब वेजाइना में स्वेलिंग या फिर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो सकता है विच इज़ वेरी पेनफुल विथ थिक चीजी डिस्चार्ज, मतलब वेजाइना से कुछ वाइटिश कलर का थिक डिस्चार्ज रिलीज होगा, सिक्रेशन होगा कुछ ना कुछ। देन मैन में डेवलप पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा। क्लियर। नाउ व्हाट इज द मोड ऑफ देयर ट्रीटमेंट? एंटीबायोटिक लाइक सच एज clotrimazole and miconazole are the effective means for their treatment. क्या क्या देखो, द फंगल एंटीबायोटिक जो है क्या क्या है देखो, क्लोट्रीमाजोल एंड माइकोनाजोल, ठीक है, आर इफेक्टिव फॉर द डिजीज कैंडिडियासिस। तो ये हो गया द डिजीज कॉज्ड बाय और एसटीडी कॉज्ड बाय फंजाई। तो डिजीज का नाम क्या है देखो, कैंडिडियासिस, एंड व्हाट इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, कैंडिडा एल्बिकेंस। पेनफुल सिम्टम क्या है, पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजाइना विथ थिक चीजी डिस्चार्ज। एंड फीमेल के केस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा, पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा। एंड व्हाट इज द मोड ऑफ देयर ट्रीटमेंट, द क्लोट्रीमाजोल एंड माइकोनाजोल आर द ड्रग्स विच आर हाईली रिकमेंडेड फॉर द डिजीज कैंडिडियासिस। ठीक है, तो हम लोगों ने कर लिया क्लेमाइडियल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज एंड फंगल डिजीज। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, देयर इज अनदर टॉपिक विच इज कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर देखो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनफर्टिलिटी, इट इज द कंडीशन इन व्हिच इंडिविजुअल पर्सन फेल टू कंसीव इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड क्वार्टस। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी। यहाँ पे अगर मैं आसान लैंग्वेज में अगर समझाऊँ, इवन आफ्टर द सेक्सुअल मीटिंग अगर कोई भी फीमेल इंडिविजुअल या फिर मेल इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू कंसीव मतलब दे आर नॉट एबल टू डेवलप फिटस और प्रेगनेंसी, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करूँगा, इट इज़ द कंडीशन इन व्हिच इंडिविजुअल पर्सन फेल टू कंसीव मतलब एक फिटस या फिर प्रेगनेंसी अटेन नहीं कर पाता इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड कोइटस। अनप्रोटेक्टेड कोइटस मतलब यहाँ पे कोई किसी तरीके का बैरियर नहीं होगा सेक्सुअल, जैसे क्या था बार्थ कंट्रोल मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स आर देयर। तो बैरियर ना होने के बाद भी, इवन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल मीटिंग के बाद भी, द कपल इज नॉट एबल टू कंसीव एनी फिटस और फेल टू कंसीव एनी फिटस, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो ये तो हो गया इनफर्टिलिटी। अभी यहाँ पे अगर देखो इनफर्टिलिटी दो टाइप का होता है, वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी। अगर देखो प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है, इट डिनोट दोज पेशेंट्स हु हैव नेवर कंसीव। मतलब प्राइमरी इनफर्टिलिटी किसके केस में बोला जा रहा है, अगर कोई भी पर्सन, इफ एनी पर्सन इज फेल टू कंसीव मतलब नेवर एबल टू कंसीव एनी फिटस। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज प्राइमरी इनफर्टिलिटी, मतलब उनके लाइफ टाइम में प्रेगनेंसी होने का चांसेस या फिर प्रेग्नेंट होने का चांसेस अगर किसी का नहीं होता है ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी ऑफ बोथ पार्टनर या फिर किसी भी पार्टनर की वजह से, then this condition is called as infertility. ठीक है, infertility is not only related to the female, it is also related to the male also. ठीक है, अगर मेल पार्टनर स्टेराइल होगा तो कंसीव करने का चांसेस
कम हो जाता है। तो ये दीज आर द सेवरल फैक्टर जो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब क्या है, अगर कोई भी कपल कभी भी फीटस को कंसीव नहीं कर पाता देन इट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी थोड़ा अलग है इसमें। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर देखो इजी लैंग्वेज में अगर समझो, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब एक पर्टिकुलर couple having their child or conceive for first time and after that they are not able to conceive in second times या फिर in subsequently, ठीक है। तो which is called as secondary infertility। फिर से मैं समझा रहा हूँ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या है। सपोज सोचो कोई एक कपल का पहले से एक बच्चा हो गया है एंड आफ्टर दैट even after unprotected sexual mating they are not able to conceive another child in their future। मतलब एक बच्चा तो हो गया बट बाद में और प्रेगनेंसी होने का चांसेस जो है वो कम हो जाता है एंड दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या निकला देखो। प्राइमरी में क्या होगा, कपल फेल टू कंसीव मतलब इनके लाइफ टाइम में प्रेगनेंसी या फिर फीटस को कंसीव नहीं कर पाता। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के केस में एक बार प्रेगनेंसी हो गया बट आफ्टर दैट दे आर नॉट एबल टू कंसीव इन देयर फ्यूचर। तो ये हो गया सेकेंडरी में एक बार कंसीव होगा उसके बाद चांसेस कम होगा और प्राइमरी में देयर इज नो चांसेस ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है। तो विच इज कॉल्ड प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड अनदर वन इज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को मैंने यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इट इंडिकेट प्रीवियस प्रेगनेंसी मतलब पहले एक बार प्रेगनेंसी हो गया बट फेलियर टू कंसीव सब्सिक्वेंटली मतलब आफ्टर दैट दे आर नॉट एबल टू कंसीव एनी फीटस। तो ये हो गया सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अभी जो इनफर्टिलिटी जो है, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स फॉर इनफर्टिलिटी इन केस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। क्योंकि मेल एंड फीमेल क्यों है, क्योंकि दिस फर्टिलाइजेशन इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन बोथ पार्टनर्स वेदर इट इज़ मेल और फीमेल। तो ये अलग अलग हो जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे इनफर्टिलिटी इन मेल। तो देयर आर सेवरल रीजन फॉर इनफर्टिलिटी इन मेल मतलब मेल भी कभी कभी स्टेराइल हो सकता है। तो अभी यहाँ पे अगर देखो व्हाट आर द डिफरेंट रीजन फॉर दिस इनफर्टिलिटी और इन मेल्स। तो फर्स्ट वन अगर देखो ड्यू टू क्रिप्टोर्चिडिज्म। अभी क्रिप्टोर्चिडिज्म क्या हम लोगों ने पढ़ा था, ये कौन सा चैप्टर में था, थर्ड चैप्टर में। क्रिप्टोर्चिडिज्म में क्या होता था, टेस्टिस इज अनेबल टू डिसेंड डाउन इन द स्क्रोटम। तो जिससे क्या होता है, स्क्रोटम इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज क्रिप्टोर्चिडिज्म। तो क्रिप्टोर्चिडिज्म इज द अनदर फैक्टर फॉर इनफर्टिलिटी। फिर से मैं रिपीट करूँगा, ड्यू टू क्रिप्टोर्चिडिज्म टेस्टिस आर अनेबल टू डिसेंड इन स्क्रोटम। टेस्टिस जो है स्क्रोटम में डिसेंड नहीं होगा, एज ए रिजल्ट क्या होगा, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इफ़ द मेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म देन हाउ द मेल इज एबल टू फर्टिलाइज द एग, ठीक है। तो ये एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन अगर देखो, एल्कोहोलिज्म कॉजेज डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट important point because most of the male those who are alcoholic मतलब they are consuming large amount of alcohol, इनके केस में क्या होगा, डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस होने का चांस होता है। मतलब स्पर्म जो होगा, स्पर्म आइदर वीक होगा या फिर स्पर्म में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा जिससे क्या होगा, स्पर्म इज नॉट सक्सेसफुल टू फर्टिलाइज द ओवम, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा रीजन। थर्ड रीजन अगर देखो वो है इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी का मतलब क्या था, अनेबल टू होल्ड द इरेक्ट पेनिस। तो यहाँ पे अगर देखो इम्पोटेंसी इन व्हिच मेल अनेबल टू होल्ड इरेक्ट पेनिस एंड नॉट एबल टू पेनिट्रेट द वेजाइना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेल के जो पेनिस जो है, पेनिस इज नॉट एबल टू होल्ड इरेक्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एज ए रिजल्ट क्या होता है, द पेनिस इज नॉट एबल टू ट्रांसफर और नॉट एबल टू पेनिट्रेट द वेजाइना एंड ट्रांसफर द स्पर्म, ठीक है। तो ये दोनों अगर चीज़ नहीं होगा तो इससे क्या होगा, इनफर्टिलिटी होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। एंड दिस अनेबल टू होल्ड इरेक्ट नेचर ऑफ पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल कोइटस इज कॉल्ड एज इम्पोटेंसी, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट अगर देखो, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन।
और एक फैक्टर क्या हो सकता है, अगर किसी भी मेल के बॉडी में गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कम होता है तो व्हाट आर नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, वन इज एलएच मीन्स ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड अनदर वन इज फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सब हार्मोन अगर मेल के बॉडी में कम होता है तब देयर इज ए चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी बिकॉज दिस टू हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर ये हार्मोन का रोल नहीं होगा तो द मेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म इन लार्ज अमाउंट। नेक्स्ट अगर देखो फेलियर टू डिपोजिट स्पर्म हाई इन द वेजाइना, दिस वन इज अनदर प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड एज क्वार्टर प्रॉब्लम। मतलब सेक्सुअल मीटिंग तो हो रहा है बट द इसका सिंपली अगर इजी लैंग्वेज में समझो इट इज जनरली नोन एज स्पर्म काउंट। अगर किसी का स्पर्म काउंट बहुत कम होता है, जितना रिक्वायरमेंट होता है उससे अगर कम होता है तब क्या होगा, इट में हैम्पर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्योंकि नियर अबाउट 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म आर डिस्चार्ज एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल क्वार्टर्स। अगर उसका नंबर अगर कम होगा, सपोज सोच लो किसी इन केस ऑफ मेल अगर ओनली 10,000 स्पर्म अगर रिलीज होता है तो आफ्टर एंटरिंग इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट मोस्ट ऑफ द स्पर्म क्या होता है ड्यू टू फेगोसाइटोसिस या फिर डिफरेंट अदर एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट स्पर्म इज नॉट एबल टू सर्वाइव। ठीक है, या फिर स्पर्म का क्या होता है मोबाइलिटी या फिर उनका जो मूवमेंट जो होता है स्लो होने की वजह से दे आर नॉट एबल टू रीच अप टू द ओवम, तो उससे क्या होगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इट इज़ अनदर रीजन फॉर द इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो क्या है देखो व्हाट इज द प्रॉब्लम, फेलियर टू डिपोजिट स्पर्म हाई इन द वेजाइना, मतलब हाई काउंट ऑफ स्पर्म जो है वो अगर कम होगा मतलब कम डिपोजिट होगा देन इट मे लीड टू इनफर्टिलिटी। देन नेक्स्ट वन इज द अदाम। अदाम का फुल फॉर्म क्या था वो हम लोगों ने 3rd चैप्टर में पढ़ा था। अदाम मीन्स एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल। ठीक है, जब इन केस ऑफ मेल अगर देखो अगर किसी भी मेल के बॉडी में एज के साथ साथ उनका एंड्रोजन का डेफिशिएंसी मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का डेफिशिएंसी अगर होगा तो उससे क्या होगा स्पर्मेटोजेनेसिस इफेक्ट होगा, देन स्पर्म इज नॉट प्रोड्यूस। तो दिस कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेराइल मेल कंडीशन या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टॉप हो जाएगा, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज मेल मेनोपॉज। देन नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज रिडक्शन इन मोटालिटी ऑफ स्पर्म, मतलब अगर स्पर्म का मोबाइलिटी या फिर मोटालिटी अगर कम होता है या फिर ब्लॉकेज इन वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस अगर ब्लॉक होता है तब भी ये इनफर्टिलिटी का रीजन बन सकता है। एंड द लास्ट वन इज यूज ऑफ हाइपरटेंसिव ड्रग फॉर लॉन्ग टाइम, अगर किसी ने हाइपरटेंसिव ड्रग फ्रॉम यूज्ड फ्रॉम लॉन्ग टाइम देन it may cause to infertility of male. So these are the different or several factors which are responsible for infertility in men. मैं फिर से रिपीट करूँगा क्या क्या है। फर्स्ट वन इज ड्यू टू द क्रिप्टोर्चिडिज्म, क्या होगा टेस्टिस इज अनेबल टू डिसेंड डाउन एंड द स्पर्म इज और स्पर्म आर नॉट प्रोड्यूस्ड। दूसरा क्या हो सका क्या फैक्टर है, दूसरा जो फैक्टर है विच इज़ द एल्कोहलिक, अगर कोई भी मेल ज़्यादा एल्कोहलिक है उनका स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ा डिफेक्टिव होगा। इम्पोर्टेंसी इज द रीजन जहाँ पे क्या होगा मेल पेनिस इज नॉट इरेक्ट इन नॉट एबल टू होल्ड द इरेक्ट नेचर एंड ऑल्सो नॉट एबल टू पेनिट्रेट द वेजाइना, तो इससे क्या होगा स्पर्म ट्रांसफर नहीं होगा। देन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंड्रोजन हार्मोन जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी का आधा जैसे स्पर्म काउंट कम होता है, ठीक है, जैसे जैसे फेलियर टू डिपोजिट स्पर्म हाई इन द वेजाइना, वेजाइना में अगर स्पर्म काउंट कम होता है तो उससे भी एक प्रॉब्लम होगा। देन आदाम जनरली वो एज्ड मेल के केस में दिखाई देता है विच इज कॉल्ड एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको मेल मेनोपॉज, ये भी एक फैक्टर है। या फिर रिडक्शन इन मोटालिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म का मोटालिटी अगर कम होता है या फिर ब्लॉक इन कहाँ पे वास डिफरेंस में अगर ब्लॉकेज होता है तब भी स्पर्म इज नॉट एबल टू फर्टिलाइज। एंड देन अगर किसी ने ज़्यादा हाइपरटेंसिव ड्रग यूज़ किया देन इट मे ऑल्सो लीड टू इनफर्टिलिटी इन मेल। तो दीज आर द डिफरेंट रीजन और द सेवरल रीजन फॉर इनफर्टिलिटी। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज इनफर्टिलिटी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी एंड व्हाट आर द रीजन फॉर इनफर्टिलिटी एंड इन मेल्स। तो ये हो गया इन केस ऑफ मेल। अभी हम लोग देखेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी।
ठीक है। तो इनफर्टिलिटी इन फीमेल अगर देखो, इसमें भी बहुत सारा फैक्टर होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी इन फीमेल। तो फर्स्ट वन अगर देखो, डिफेक्टिव ग्रोथ ऑफ यूटेरस एंड वेजाइना। किसी भी फीमेल का यूटेरस एंड वेजाइना का ग्रोथ स्ट्रक्चर या फिर ग्रोथ अगर थोड़ा एबनॉर्मल या फिर डिफेक्टिव होता है, उससे फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस कम हो जाता है। दूसरा क्या है देखो, इंक्रीज्ड स्पर्म फेगोसाइटोसिस। अगर फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ज़्यादा अमाउंट में स्पर्म को डिस्ट्रॉय करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, तब क्या होगा, स्पर्म इज नॉट एबल टू रीच अप टू द ओवम, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, तो जिससे इनफर्टिलिटी हो सकता है। थर्ड वन इज एब्सेंस ऑफ ओवुलेशन। कभी कभी जिसको हम लोग बोलते हैं, दिस कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनोवुलेशन। फीमेल के केस में क्या होता है, इन सर्टेन फीमेल दे आर ओवुलेशन, द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन इज नॉट ओकर्स। तो अगर ओवम नहीं होगा तब क्या होगा, स्पर्म इज नॉट एबल टू फर्टिलाइज। देन फोर्थ वन इज अर्ली मिसकरेजेस। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मिसकरेज मतलब क्या होगा, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी अगर ड्यू टू फिजियोलॉजिकल फैक्टर और ड्यू टू सेवरल अदर मैकेनिकल फैक्टर, अगर फिटस अगर क्या होगा, फिटस अगर मिसकरेज होता है, मिसकरेज मीन्स द फीमेल इज नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर एनवायरनमेंट टू द फिटस, तब क्या होगा, फिटस डिजेनरेट कर जाएगा एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मिसकरेजेस। तो अर्ली मिसकरेज अगर किसी भी फीमेल में होता है तो उससे भी इनफर्टिलिटी होने का चांस होता है इन नियर फ्यूचर। देन एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या था, जनरली हमको क्या पता है, द जाइगोट इज यूज टू अटैच विद द यूटेरस, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता था, द जाइगोट इज यूज टू अटैच विद द फेलोपियन ट्यूब रेदर देन द यूटेरस। दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब सिंपली समझो, जाइगोट जो यूटेरस में चिपकना चाहिए था वो यूटेरस में नहीं चिपक के ये कहाँ पे चिपक रहा है, जाके फेलोपियन ट्यूब में, एंड दिस condition is called as ectopic pregnancy, which is also responsible for infertility in female. And then like male, if a particular female consume large amount of alcohol, उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। एंड देन फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन फेलियर, अगर फर्टिलाइजेशन फेल होता है या फिर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन भी अगर फेल होता है। इम्प्लांटेशन क्या था, द अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रायो विद द यूटेरस। ये अटैचमेंट प्रोसेस अगर फेल होता है तब भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। या फिर ब्लॉकेज ऑफ ओविडक्ट अगर ब्लॉक होगा तब क्या होगा, द ओवम ओवरी से रिलीज होने के बाद भी नॉट एबल टू रीच अप टू द जंक्शन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो उससे भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। तो दीज आर द फ्यू रीजन फॉर इनफर्टिलिटी इन फीमेल। तो क्या क्या रीजन है, डिफेक्टिव ग्रोथ ऑफ यूटेरस एंड वेजाइना। यूटेरस एंड वेजाइना अगर डिफेक्टिव ग्रोथ होता है या फिर डिफेक्टिव स्ट्रक्चर होता है तब भी ये प्रॉब्लम होगा। इंक्रीज स्पर्म हाइड्रोफेगोसाइटोसिस, मतलब फीमेल के बॉडी का फिजियोलॉजिकल कंडीशन अगर चेंज होता है एंड दिस फिजियोलॉजिकल कंडीशन यूज टू डिस्ट्रॉय लार्ज अमाउंट ऑफ स्पर्म, तब भी ये इनफर्टिलिटी हो सकता है। या फिर एब्सेंस ऑफ ओवुलेशन, अगर किसी का एग फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। या फिर अर्ली मिसकरेज मीन्स डिजेनरेशन ऑफ एम्ब्रायो एट अर्ली स्टेज। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो एम्ब्रायो जो फॉर्म होगा या फिर जो जाइगोट जो होगा यूटेरस में अटैच ना होके ओविडक्ट में अगर रह जाता है, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्सेसिव एल्कोहलिक कंजम्पशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन फेल्यूर। तो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स। तो हम लोगों ने क्या बोल लिया, इनफर्टिलिटी इन मेल एंड इनफर्टिलिटी इन फीमेल, मतलब व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द इनफर्टिलिटी इन मेल एंड female. Now when this infertility, the problem related to infertility is developed, then there are several other techniques are also developed which is useful to overcome the problem related to infertility. मतलब सिंपल वर्ड में अगर समझो, अगर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम अगर किसी में डेवलप होता है तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बहुत सारा टेक्नोलॉजी आजकल डेवलप हो गया है जिससे कि ये जो इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम जो होता है, द प्रॉब्लम जो है कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। या फिर बहुत सारा प्रॉब्लम टेक्निक है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं,
वी कैन ओवरकम द इनफर्टिलिटी या फिर वी कैन इजीली कंसीव द फिटस। ठीक है, तो व्हाट आर द टेक्नोलॉजी व्हिच आर यूज टू ओवरकम द प्रॉब्लम रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे द टेक्नोलॉजी व्हिच आर जनरली यूज्ड फॉर टू ओवरकम द इनफर्टिलिटी। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी टू सॉल्व इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अगर देखो दीज आर द टेक्निक्स व्हिच आर यूज टू सॉल्व इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, मतलब इनफर्टिलिटी के साथ जितना भी प्रॉब्लम रिलेटेड है उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं बाय दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी व्हिच इज कॉल्ड एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। जनरली इन शॉर्ट इसको बोला जाता है ART। ART का फुल फॉर्म क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा है, ये कभी कभी इन द एग्जामिनेशन फुल एज ए फुल फॉर्म आ सकता है या फिर नीट एग्जाम में भी एज ए फुल फॉर्म आ सकता है। व्हाट इज ART? ART मीन्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो व्हाट आर द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, अगर देखो तो मेथड अभी अब क्या क्या मेथड है, देखो मेथड्स ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, बहुत सारा मेथड है विच इज़ यूज्ड एज ए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो क्या क्या मेथड है, अगर देखो यहाँ पे देयर आर 4 मेथड। फर्स्ट मेथड इज द टेस्ट ट्यूब बेबी। सेकेंड मेथड इज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक मीन्स AIT। थर्ड वन इज कॉल्ड एज गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब होता है गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज ICSI। ICSI मीन्स इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। समझ में आ रहा है, ICSI का फुल फॉर्म क्या है, इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, मतलब सिंपली समझो एक का जो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये है टेक्निक। तो दीज आर द फ्यू मेथड्स ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या क्या है देखो, फर्स्ट वन इज टेस्ट ट्यूब बेबी, सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या किया जाता है, द स्पर्म इज कलेक्टेड फ्रॉम द पेरेंट, मेल पेरेंट या फिर फ्रॉम द डोनर एंड डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। थर्ड अगर देखो गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, नाम से उसका काम समझ में आता है। गेमेट मतलब स्पर्म, कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, इंट्राफेलोपियन मतलब फेलोपियन ट्यूबुल में ट्रांसफ़र किया जाएगा डायरेक्टली, जिससे कि स्पर्म कैन इजीली फर्टिलाइज विद द एग। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मतलब जहाँ पे स्पर्म इज इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर में, एक्चुअली मैंने इस लेक्चर में सिर्फ डिस्कस किया अप टू द टेस्ट ट्यूब बेबी, एंड लेटर ऑन इन अदर लेक्चर्स आई विल डिस्कस अबाउट द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एंड इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, तो नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं विच इज कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी अगर देखो नाम से ही थोड़ा बहुत आइडिया लगा लो, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म carried outside the body of mother to form zygote। ठीक है, इज कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म आउटसाइड द बॉडी ऑफ मदर या फिर वुमेन इज कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, अभी टेस्ट ट्यूब बेबी में जब क्या होगा, स्पर्म एंड एग को फ्यूज करने से क्या होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। नाउ दिस जाइगोट इज अलाउड टू डिवाइड एंड फॉर्म एम्ब्रायो व्हिच इज इम्प्लांटेड इन यूटेरस। ठीक है, सिंपल समझो, टेस्ट ट्यूब बेबी के केस में क्या हो रहा है, स्पर्म एंड एग जो है बॉडी के बाहर फ्यूज किया जाता है, मतलब जाइगोट फॉर्म किया जाता है अंडर इन विट्रो कंडीशन और इन लेबोरेटरी कंडीशन, एंड देन द जाइगोट इज अलाउड टू डिवाइड इनटू एम्ब्रायो। ठीक है, जाइगोट डिवाइड होकर धीरे धीरे जब एम्ब्रायो फॉर्म हो जाएगा, देन दिस एम्ब्रायो इज इम्प्लांटेड इन यूटेरस वेयर इट डेवलप इनटू फीटस। ठीक है, ये जो जब जाइगोट डेवलप होगा, जाइगोट को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, इट कैन बी ट्रांसफर इनटू द यूटेरस वेयर इट डेवलप इनटू ए फीटस। ठीक है, एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, समझ में आ गया, या फिर मैं फिर से रिपीट करूँगा, पहले क्या किया जाएगा, अगर वर्ड वाइज अगर देखो स्टोरी के हिसाब से देखो, एग एंड स्पर्म जो है कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द पेरेंट या फिर फ्रॉम द डोनर, एंड देन
फर्टिलाइज किया जाएगा आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इंडिविजुअल इन विट्रो कंडीशन एंड जाइगोट फॉर्म हो जाएगा आफ्टर दिस फ्यूजन। देन जाइगोट इज अलाउड टू डिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रायो। जब ये एम्ब्रायो डेवलप कर लेगा देन द एम्ब्रायो इज ट्रांसफर इनटू द यूटेरस ऑफ मदर, ठीक है, या फिर फीमेल बॉडी, एंड उससे क्या होगा, फिटस डेवलप होगा, एंड दिस टाइप ऑफ फिटस इज जनरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। सेकेंड अगर देखो, द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वॉज लुइस जॉय ब्राउन बोर्न इन 1978, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। ये कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, जनरली द नीट एग्जाम में आ सकता है। नेम व्हिच वन इज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इज द लुइस जॉय ब्राउन व्हिच वाज बोर्न ऑन जुलाई 1978, ठीक है, जुलाई 1978 को उनका बर्थ हुआ था। ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी का जो कॉन्सेप्ट जो है ये किसने डेवलप किया था, डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड डेवलपिंग दिस टेक्निक ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। रॉबर्ट एडवर्ड ने फॉर द फर्स्ट टाइम टेस्ट ट्यूब बेबी का जो कॉन्सेप्ट जो है या फिर टेक्निक जो है डेवलप किया था। इंडिया का जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम जो है, द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया वाज कुम हर्षा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेस्ट ट्यूब बेबी। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है, लुइस जॉय ब्राउन, एंड द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन इंडिया अगर देखो कुम हर्षा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का टेस्ट ट्यूब बेबी। अभी ये जो प्रोसेस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, हाउ इट कैन बी डेवलप, द मेथड यूज्ड इन टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टेप वाइज समझाया है, देखो व्हाट आर द मेथड यूज्ड टू डेवलप और टेस्ट ट्यूब बेबी। पहले हम लोगों को क्या करना होगा, ओवा और स्पर्म ऑफ डोनर और पेरेंट्स आर कलेक्टेड, ठीक है। ये दो चीज़ हम लोग कर सकते हैं। अगर बोथ द पेरेंट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एग और स्पर्म, तब हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, फ्रॉम द डोनर, या फिर इफ द पार्टनर्स आर एबल टू प्रोड्यूस एग एंड स्पर्म, तो वी कैन ऑब्टेन एग एंड स्पर्म फ्रॉम द पेरेंट ऑल्सो, ठीक है। डोनर से भी ले सकते हैं या फिर पेरेंट से भी ले सकते हैं। तो पहले हम लोग को क्या करना होगा, ओवा एंड स्पर्म कलेक्ट करना होगा, ठीक है। देन बोथ दिस ओवा एंड स्पर्म इज इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट, मतलब दोनों को फ्यूज़ किया जाएगा अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन, ठीक है। जब दोनों को फ्यूज़ किया जाएगा तो जब स्पर्म एंड एग इज फ्यूज्ड, इससे क्या डेवलप होगा, इट इज़ डेवलप इनटू और इट डेवलप जाइगोट, और ये जाइगोट का डेवलप हो रहा है इन द आर्टिफिशियल कंडीशन और इन लेबोरेटरी, ठीक है। अभी क्या किया जाएगा, ये जो जाइगोट जो है, जाइगोट इज अलाउड टू डिवाइड फॉर्मिंग ब्लास्टोमियर, ठीक है। जाइगोट को डिवाइड करने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो जाइगोट कंटिन्यूसली डिवाइड होकर क्या फॉर्म करेगा, ब्लास्टोमियर। व्हेनेवर दिस ब्लास्टोमियर इज फॉर्म, इसको हम लोग इम्प्लेंट करेंगे। यहाँ पे अगर देखो आफ्टर दिस स्टेप, मतलब आफ्टर द थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में क्या लिखा है, देखो जाइगोट इज ट्रांसफर इनटू फेलोपियन ट्यूब इज नोन एज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो मतलब जो हम लोगों ने जो जाइगोट डेवलप किया है, या फिर हम लोगों ने दो टाइप से हम लोग इसको अटेन कर सकते हैं। एक टाइप में क्या कर सकते हैं, जाइगोट को डायरेक्टली हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। जाइगोट इंट्राफेलोपियन, यहाँ पे नाम ही देखो, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, मतलब फेलोपियन ट्यूब में हम लोग जाइगोट को छोड़ सकते हैं। ये हुआ एक प्रोसेस। मतलब सिंपली समझो, एग एंड स्पर्म को हम लोगों ने लेबोरेटरी के अंदर फ्यूज़ कर लिया, तो फ्यूज़ करने के बाद क्या फॉर्म होगा, जाइगोट। उस जाइगोट को हम लोग डायरेक्टली फेलोपियन ट्यूब में हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जिफ्ट मतलब जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। और दूसरा जो टेक्निक क्या है, दूसरा टेक्निक अगर देखो, हम लोगों ने जाइगोट डेवलप कर लिया बाय द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, उस जाइगोट को हम लोग क्या करेंगे, अलाउड टू डिवाइड होकर जब ब्लास्टोमियर फॉर्म करेगा, देन दिस ब्लास्टोमियर मतलब 8 सेल स्टेज जब फॉर्म हो जाएगा किसी भी एम्ब्रायो का, देन दिस 8 सेल स्टेज ऑफ एम्ब्रायो इज ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू द यूटेरस, which is called as intrauterine transfer, IUT, intrauterine transfer, ठीक है। This process is called as in vitro fertilization followed by embryo transfer, ठीक है। in vitro fertilization followed by embryo transfer, समझ में आ रहा है। These are the method which are used in test tube baby। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूँगा टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, पहले स्पर्म एंड एग को फ्यूज़ किया जाएगा अंडर लेबोरेटरी कंडीशन, फ्यूज होने के बाद क्या होगा, जाइगोट। तो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जाइगोट जो हम लोगों ने डेवलप किया है
उस जाइगोट को डायरेक्टली हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, जिफ्ट, ZIFT, ठीक है। या फिर और एक चीज़ क्या कर सकते हैं, पहले हम लोगों ने जाइगोट डेवलप कर लिया आफ्टर फ्यूजन, देन द जाइगोट इज अलाउड टू डिवाइड टू फॉर्म द ब्लास्टोमियर। तो जब उस ब्लास्टोमियर में 8 सेल स्टेज आएगा, उस ब्लास्टोमियर को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे, यूटेरस पे। मतलब एक प्रोसेस क्या है, जाइगोट को ट्रांसफ़र करना, दूसरा प्रोसेस क्या है, एम्ब्रायो को ट्रांसफ़र करना, ठीक है, कहाँ पे, यूटेरस पे। तो जाइगोट हुआ तो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाएगा, अगर इट इज़ डेवलप इनटू एम्ब्रायो देन इट इज़ ट्रांसफर इनटू द यूटेरस, जिसको हम लोग बोलेंगे IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। तो बाय दिस 2 प्रोसेस या फिर मेथड इजीली हम लोग फर्टिलाइजेशन को सक्सेसफुल कर सकते हैं, एंड द फिटस इज जनरली कॉल्ड एज टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर देखो, दिस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन और इन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट वी कैन परफॉर्म द फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जाइगोट, whether it is zygote or embryo, it is transfer into the female body which is called as embryo transfer। तो ये हो गया पूरा मेथड ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अभी तुम लोग को क्या करना है, जितना भी टॉपिक अभी तक मैंने कराया है, हर एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, एंड उसके ऊपर तुम लोग स्टडी कर सकते हो, रिपीटेडली रिवाइंड करके रिपीटेडली वीडियो को देख सकते हो। तो जितना तुम लोग इसको देखोगे तुम लोग के लिए अच्छा होगा, तो तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, विच विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। बिकॉज ड्यू टू लॉकडाउन एक तो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम स्लो हो गया है, या फिर वी आर कन्वर्टेड इनटू ऑनलाइन क्लासेस, बट इफ़ सोच लो कि अगर ये कंडीशन बेहतर हो जाता है एट द एंड ऑफ दिस ईयर, तुम लोगों को एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। तो एग्ज़ाम के लिए क्या करना होगा, तुम लोग को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। ये नहीं कि कोरोना था, कोरोना की वजह से हम लोगों ने पढ़ाई नहीं किया। तो यू हैव द ऑप्शंस, हम लोग ट्राई कर रहे हैं टू प्रोवाइड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन या फिर लेक्चर्स ऑन डिफरेंट टॉपिक, ताकि तुम लोग इजीली एग्ज़ाम में बैठ पाओ, जिससे तुम लोगों के लिए अच्छा होगा फ्यूचर में। एंड सिंपल और एक चीज़, कोरोना की वजह से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम मतलब क्या, हम लोग बाहर निकल नहीं सकते, ट्यूशन्स नहीं जा रहे, दिमाग में एक प्रेशर बन जाता है। ये मत समझो, सिंपली समझो यही। अगर देखो, बहुत स्टूडेंट पहले कंप्लेंट करते थे, सर हम लोगों को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता ड्यू टू लॉट्स ऑफ ट्यूशन्स, या फिर स्कूल जाना होता है या कॉलेज जाना होता है, तुम लोगों को टाइम नहीं मिलता। तो इसको उस तरीके से एडवांटेज ले लो कोरोना पेंडेमिक का। ये समझो कि कोरोना पेंडेमिक से एक चीज़ तुम लोगों को मिल रहा है। हाँ ये ठीक है, बाहर नहीं निकल सकते, बट एक चीज़ तुम लोगों को क्या मिल रहा है, तुम लोगों को मिल रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब घर में बैठे बैठे इजीली पढ़ सकते हो, जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो पढ़ाई के ऊपर घर में बैठे बैठे विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेशर, तुम लोग इजीली उसको यूज़ कर सकते हो, मतलब यूटिलाइज कर सकते हो। जितना यूटिलाइज करोगे ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, उस टाइम को उतना तुम लोगों का रिजल्ट बेटर होता जाएगा, ठीक है। देन यूज़ द टाइम, यूटिलाइज द टाइम एट योर होम, फॉलो ऑल द लेक्चर्स, नॉट ओनली द बायोलॉजी, अदर सब्जेक्ट्स को भी तुम लोग अच्छे से फॉलो करो, ताकि तुम लोगों का रिजल्ट अच्छे से अच्छा हो जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड बी सेफ।